السلام علیکم ناظرین، بولتا تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور دوست محمد تمجید۔ ایک ایسے ہر دل عزیز قائد جو بچوں میں، نوجوانوں میں، خواتین اور بوڑھوں میں ایک سا مقبول ہے، اور جن کی دلکش تقاریر نوجوانوں میں جوش اور امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ ریاست تلنگانہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا خصوصی پروگرام، سالار کے سپہ سالار اکبر الدین اویسی۔ ایک ایسی سیاسی جنگ جس کو جیتنا لوگ ناممکن سمجھ رہے تھے، ایک ایسی منزل جس کی راہ کافی مشکل تھی۔ وقت کے سیاسی ماہرین نے کہا تھا بچے کا مقابلہ شیر سے ہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنی ہمت اور عزم کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلے بلند کر میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ جب بھی ریاست آندھرا پردیش کی تاریخ لکھی جائے گی، لوگ حلقے چندران گٹے کے 1999 کے الیکشن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بے باک اور تیز ترار مقرر، جس کی تقاریر نوجوانوں میں جوش اور اپوزیشن خیموں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ جب وہ نعرے تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں تو سامنے کھڑے ہزاروں لوگ فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اکبر الدین اویسی کی، جن کی پیدائش 14 جون 1970 میں شہر حیدرآباد میں ہوئی۔ مرحوم سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے آپ منجلے بیٹے ہیں۔ آپ کے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے بڑے بھائی بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جماعت کا صدر مانا اور ہر محاذ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے رہے۔ میری جان ہے میرا بھائی، میری شان ہے میرا بھائی، میری عزت ہے میرا بھائی، میری آواز ہے میرا صدر، میری طاقت ہے میرا صدر۔ ارے مر جائے گا اکبر الدین اویسی، گمنامی کی زندگی گزار لے گا، جنگلوں میں چلے جائے گا، خدا کی قسم کبھی بھی منجلس یا اپنے بھائی کے خلاف، اپنے صدر کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جا۔ یہ کہے کی زندگی، یہ کہے کا اقتدار، یہ کہے کی طاقت، یہ کہے کی دولت، میری جوتی کی نوک پر اقتدار، میرے سر کی پگڑی اور میرے سر کی شان کا نام میرا بھائی، میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ 1999 میں چندران گٹے کی جیت سے اکبر الدین اویسی کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ سیاسی میدان میں کمزور پڑ چکی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک نئے سرے سے آغاز ہوا۔ آپ کی جیت سے سالار ملت کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ پھر دونوں بھائی اپنے والد کے زیر نگرانی میں شہر کے گلی گلی، نکڑ، محلے جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے اور سیاسی میدان میں قوم و ملت کی آواز کی اہمیت بتاتے۔ پھر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی محنت اور اکبر الدین اویسی کی شعلہ بیانی سے مجلس پروان چڑھنے لگی۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی صحت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جگہ اپنے بڑے بیٹے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو ممبر آف پارلیمنٹ کی ذمہ داری سونپی۔ جب دوسری بار اکبر الدین اویسی نے حلقہ چندران گٹے سے کامیابی حاصل کی، آپ کے کاندھوں پہ نہ صرف چندران گٹا بلکہ متحدہ آندھرا پردیش کے اقلیتوں کی ذمہ داری دی گئی اور آپ کو جماعت کی جانب سے فلور لیڈر بنا دیا گیا اور آپ عوام کے مسائل کو بے باکی سے اٹھاتے رہے۔ سی ایم وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے دور میں اکبر الدین اویسی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں حاصل ہو، اور یہ بے چینی اکبر الدین اویسی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر اسمبلی میں مائنورٹیز کی ریزرویشن کی آواز اٹھانے لگے۔ حکمرانوں کی جانب سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی،
लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी रुकने वाले नहीं थे। हर महाज में आपने जद्दोजहद जारी रखी और फिर आपकी क़यादत में वो कारनामा अंजाम हो पाया जो हिंदुस्तान की किसी रियासत में ना हुआ। और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में लाने में कामयाब हुए। सीएम राजशेखर रेड्डी के दौर में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में पेश आए वाक़े पर एहतजाज करने वाले कई सारे नौजवान शहीद हुए। इस वाक़े की मजम्मत करने आए उस वक्त के होम मिनिस्टर को अकबरुद्दीन ओवैसी ने जारहाना अंदाज में उनको घेराव किया और उन्हें वहां से वापस रवाना किया। उस वक्त के सीएम किरण कुमार रेड्डी की आंख में आंख डालकर इस वाक़े की सख्त मजम्मत की, जिस पर खुद किरण कुमार रेड्डी ने इस गलती को कबूल करते हुए ऐवान में आवाम से माफ़ी मांगी और शहीद होने वाले मुसलमानों को मुआवजा भी दिया। सियासी साजिशों का ऐसा शिकार बने अकबरुद्दीन ओवैसी के एक वक्त मौत के मुंह में जा खड़े हुए और उस वाक़ये से ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत में गम की लहर दौड़ गई। सारे आलम के लोग अपने महबूब कायद अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए अपने रब के सामने सजदा रेस होकर उनके हयात के लिए दुआ मांगी और अकबरुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में है। सारे आलम के मुसलमानों ने इस गुनहगार के लिए दुआ की। अरे मैं कैसे एहसान अदा करूंगा इन मुसलमानों का, मैं एहसान नहीं कर अदा कर सकता। मेरा रोआ रोआ, मेरा जिस्म का एक खतरा खतरा खून एहसान मन है मुसलमाना ने आलम का, जिसने मेरे हयात के लिए दुआ की। मैं एहसान अदा नहीं कर सकता। ऐ सरजमीन दक्कन के मुसलमानों, तुमने तो मुझे खरीद लिया। आज अकबर ओवैसी की एक एक सांस तुम्हारे एहसान तले दबी है। जब तक जिंदा हूं, जितनी हयात है वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे ही लिए। शरंगेज तकारीर को सुनते सुनते अकबरुद्दीन ओवैसी ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और आपकी एक तकरीर ने सारे फिरका परस्त ताकतों के पसीने छुड़वा दिए। आपकी सेहत खराब होने के बावजूद भी आपको 40 दिन तक जेल की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी। अकबरुद्दीन ओवैसी की सोच यही नहीं रुकी। आप चाहते थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की असेंबली में भी उठे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस ने वहां के बल्दिया इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन से चंद रोज पहले अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे और लोग उनकी दिलकश तकरीरों से मुतासिर हुए और फिर जब नतीजे आए, सारे अपोजिशन खैमे मजलिस की जीत से चौंक गए और 11 म्युनिसिपल सीटों में मजलिस ने महाराष्ट्र में अपनी सियासी सफर की शुरुआत की। फिर देखते देखते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 रुकने असेंबली और 1 रुकने पार्लिमान बनाने में कामयाब हुई। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर की तोसी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की और 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए। 2004 में आपको फ्लोर लीडर बनाया गया। जब से लेकर अब तक आपने 40,15,000 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को फी री इन्वेस्टमेंट दिलाने में कामयाब रहे। यही नहीं, शादी मुबारक जैसी स्कीम में 2,64,000 अफराद खानदान को इससे फायदा पहुंचा और इसकी रकम में इजाफा कराने में भी आप कामयाब रहे।
अलहदा तेलंगाना के 9 साल में आपने हुकूमत से नुमाइंदगी कर मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए माइनॉरिटीज को 9,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। तेज रफ्तार दुनिया में पुराने शहर की खवातीन पीछे ना रह जाएं, इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनको आगे बढ़ाने और रोजगार फराहम कराने के लिए तकरीबन 2 लाख से ज्यादा खवातीन को अपने जाती खर्चे पर कार जॉब, टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की मुफ्त में ट्रेनिंग को जारी रखा। पूरी दुनिया में पहली कोविड-19 की वबा ने हर किसी को परेशान हाल कर दिया था। रोज कमाकर खाने वालों को तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही थी। इस मुश्किल हालात में ना सिर्फ अपने हल्के चंद्रान गुट्टा बल्कि अतराफ के कई इलाके में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई लॉरी से भरे राशन किट्स को बेहतरीन पैकिंग कराकर तकरीबन 11 करोड़ अपनी जाती खर्चे पर जरूरतमंद खानदानों तक पहुंचाया। फिर रमजान के महीने के दौरान आपके जेरे निगरानी में 1 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट्स डोर टू डोर घरों तक पहुंचाए। यही नहीं बल्कि अपने हलके में रमजान के दौरान तराबी पढ़ाने से महरूम हो चुके तकरीबन 250 मौजन और हुफ़ाज़े कराम तक 1500 रुपए और राशन की किट की तकसीम भी की और साथ ही साथ दीनी मदरसों तक राशन भी पहुंचाया। फिर जब दूसरा लॉकडाउन उरूज पर था, आवाम को आपने तन्हा नहीं छोड़ते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 1,50,000 खाने के पैकेट्स और सांस लेने की मुश्किलात से गुजर रहे लोगों में 20 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई। पहले और दूसरे लॉकडाउन से लोगों की हालत अभी संभली ही नहीं थी कि हैदराबाद में तूफानी बारिश से सैलाब आया और तालाबों के कट्टे टूटने की वजह से हल्के चंद्रान गुट्टे के कई इलाके इस बाढ़ के पानी से मुतासिर हुए। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने साथियों के साथ इन इलाकों के दौरे शुरू किए। सैलाब से मुतासिर 5,000 अफरादे खानदान में दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए 33 जरूरी अशिया के किट्स तकसीम किए। ऑटो ड्राइवर्स, ओला उबेर ड्राइवर्स, मोटरसाइकिल्स और कारें जुमला 121 लोगों की खराब हो गई थी। उनमें 20 लाख की इमदाद की गई। 800 वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी जो खराब हो गए थे उनको दोबारा मरम्मत कराया गया। छोटे किराना शॉप्स जो मुतासिर हुए थे उनको भी जरूरी मदद पहुंचाई गई। सैलाब के दूसरे दिन ही 8,000 अफरादे खानदानों में दूध, ब्रेड और मिनरल वाटर फराहम किया गया। यानी इस बुरे वक्त में लोगों को तन्हा ना छोड़ते हुए और उनकी जिंदगियों को दोबारा आगाज कराने के लिए हर मुमकिन मदद को पहुंचाया। अकबरुद्दीन ओवैसी के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा स्कूल्स और कॉलेजेस है। अपने सियासी जिंदगी की शुरुआत से ही अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने कौम के बच्चों की तालीम की फिक्र थी और उन्होंने 1999 में अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में एक शानदार स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जाती सरफे से 14 तालीमी इदारे कायम कर दिए हैं, जो बेहतरीन मिसाल है। जब बोलता तेलंगाना की टीम ने रिसर्च किया तो पूरे हिंदुस्तान में एमएलए और एमपीज के तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के स्कूलों की इमारतों का क्या कहना, जिसमें वेल क्वालिफाइड टीचर्स,
डिजिटल क्लासेस, ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर्स लैब, हर वो चीज मौजूद है जिससे स्टूडेंट्स इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन इमारतों को देखकर लोग ये कयास लगा रहे थे कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए भारी डोनेशन और फीस देनी पड़ेगी। लेकिन इनके जहनों से ये चीज हटाने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर और मस्जिदों से ये ऐलान कराया कि इन स्कूलों में यतीम और मुस्तहिक बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी। और आज तकरीबन 15,000 बच्चे बगैर किसी मजहब और तफरीक के KG to PG फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे बच्चे अकबरुद्दीन ओवैसी को सर के लक़ब से खिताब कर रहे हैं। जब भी कौम पर मुसीबत आती है, अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते। आपकी क़यादत में रियासत तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत है जहां पर माइनॉरिटीज का बजट सबसे ज्यादा 2,200 करोड़ है। रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सा मकबूल और हर दिल अजीज कायद है अकबरुद्दीन ओवैसी। सालारे मिल्लत के ये सिपाही की अपनी कौम के लिए फिक्र और सोच यहीं रुकने वाली नहीं है। ये था बोलता तेलंगाना का खुसूसी प्रोग्राम सालार के सिपे सालार अकबरुद्दीन ओवैसी। इसके साथ आप अपने दोस्त सैयद मोहम्मद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।